یہ کہانی ایک ہندو گھرانے کی خاتون کی ہے جس کا بیٹا 2 ماہ کا ہوتا ہے اور اس کو چیتا اٹھا کر لے جاتا ہے۔ یہ سبق آموز کہانی آپ کے دل کو بدل کر رکھ دے گی۔ پوری کہانی سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یہ واقعہ ہندوستان کے ایک گاؤں کا ہے۔ اس گاؤں میں کافی سارے ہندو رہا کرتے تھے اور وہ گاؤں ایک جنگل کے قریب تھا۔ اس ہندو گاؤں کے آس پاس کچھ گھر مسلمانوں کے بھی تھے۔ وہ مسلمان ہندوؤں کے کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے۔ ان مسلمانوں میں ایک اللہ والے بزرگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس اللہ والے کا کوئی تعلق دنیا سے نہیں تھا، ان کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے تھا۔ وہ اللہ والے کبھی کبھار ہندوؤں کے گاؤں میں بھی آ جاتے اور ان کو سمجھاتے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن وہ ہندو لوگ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ اس اللہ والے کو وہاں سے بھگا دیتے کہ تم ہمیں ایسے راستے مت دکھاؤ، ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ ان ہندوؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام میرا تھا۔ میرا بہت ہی معصوم لڑکی اور سیدھی سادی تھی۔ اس کے گھر میں اس کا شوہر اور میرا رہتی تھی۔ میرا ماں بننے والی تھی اور کچھ مہینے بعد میرا کے گھر ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وہ بیٹا میرا کا اکیلا بیٹا تھا، اس کے پاس اور اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی۔ جبکہ میرا ایک ہندو عورت تھی، وہ اپنے مذہب کے مطابق پوجا پاٹ کرتی تھی، لیکن اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا کہ جیسے اس کی پوجا پاٹ میں، اس کی دعاؤں میں کوئی کمی ہو۔ میرا جب پوجا پاٹ کرتی تو اس کو اللہ والے کی باتیں یاد آتی، جب اللہ والے اس گاؤں میں آ کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ میرا کو اللہ والے کی بات یاد آتی کہ اس بھگوان کو ہم خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی پوجتے ہیں۔ یہ بھگوان ہمیں کوئی نفع نقصان نہیں دیتے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ پاک ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ واحد ایک ہی رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ میرا کو اللہ والے کی ایسی باتیں ہمیشہ یاد آتی۔ لیکن میرا ایک ہندو مذہب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا شوہر اور اس کے خاندان والے بھی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ وہ سخت ہندو تھے اور میرا بھی ان کی طرح پوجا پاٹ کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس گاؤں میں عجیب ہی واقعہ ہوا۔ میرا بھی اپنی روٹین کے مطابق اپنے گھر کے کام کر رہی تھی۔ اس وقت میرا کا بیٹا 2 ماہ کا ہو چکا تھا۔ میرا اپنے بیٹے کو چارپائی پہ سلا کے گھر کے کام کر رہی تھی اور گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ جیسے کہ وہ گاؤں جنگل کے قریب تھا۔ اس دن ایسا ہوا کہ اس جنگل سے ایک خطرناک چیتا آ کر میرا کے گھر میں داخل ہو گیا۔ چیتے نے بچے کو اٹھا لیا اور اٹھا کر واپس جانے لگا تو میرا کی نظر جب چیتے پر پڑی تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ میرا نے زور سے چیخ ماری اور دوڑتی ہوئی اس چیتے کے پیچھے آئی۔ چیتا اتنی تیزی سے دوڑا کہ چیتے کا کوئی پیچھا نہ کر سکا۔ گاؤں والے خطرناک چیتے کو دیکھ کر ڈر کے گھروں میں چھپ گئے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرا کے بچے کو چیتے سے بچا سکتے۔ اس وقت میرا کا شوہر بھی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ میرا چیخ پکار کرنے لگی اور رونے لگی۔ گاؤں والوں کو کہنے لگی کہ میرے بچے کو بچا کے لائیں۔ میرا کافی دیر اس راستے پر بھاگی جس راستے سے وہ چیتا بچے کو لے کر گیا تھا، لیکن چیتا کہیں گہرے جنگل میں جا کر چھپ گیا تھا۔ میرا کو اپنا بچہ نہ مل سکا۔ اتنے میں ہی میرا کا شوہر بھی واپس آ گیا۔ میرا کا شوہر بھی تڑپ کر رونے لگا کہ ہمارا بچہ چیتا لے گیا۔ سبھی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ معصوم بچہ چیتا لے گیا ہے اور وہ اسے کھا جائے گا۔ تبھی اس وقت اس گاؤں میں وہ اللہ والے مسلمان فقیر آئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے۔ جہاں پر کفر اور شرک پھیل چکا ہو وہاں پر اللہ اپنے پیارے بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ میرا اکثر ہی اللہ والے کی باتیں بہت ہی غور سے سنا کرتی تھی۔ میرا کا دل پوجا پاٹ میں نہیں لگتا تھا۔ میرا اللہ والے کو کہنے لگی، اگر آپ میرا بیٹا واپس لے آتے ہیں تو میں ابھی اور اسی وقت مسلمان ہو جاؤں گی۔ آپ میری مدد کیجیے، کسی طرح میرے بچے کو اس چیتے سے واپس لے آئیں۔ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، میرے پاس اور اولاد بھی نہیں ہے۔
अल्लाह वाले ने सबके सामने उस औरत को हौसला दिया कि तुम तसल्ली रखो, तुम्हारा बच्चा खैरियत से तुम्हारे पास वापस आ जाएगा और मैं तुम्हारे बच्चे को वापस लाऊंगा। वो हिंदू लोग अल्लाह वाले का मजाक उड़ाने लगे कि तुम इतने कमजोर और बूढ़ी उम्र के हो, इतने बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत है जो तुम उस चीते से बच्चे को ले आओगे और अब तक तो वो चीता बच्चे को खा चुका होगा। वो औरत अल्लाह वाले के आने से पहले अपने भगवान के आगे पूजा पाठ प्रार्थना कर रही थी, लेकिन जब उसके सामने अल्लाह वाले आए तो उसका पूजा से ध्यान हट गया। अल्लाह वाले उन लोगों को कहने लगे कि बेशक मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा जिस्म कमजोर है, मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मेरा ईमान मजबूत है कि अपने दिल से जो भी अल्लाह ताला से मांगूं, अल्लाह पाक हमारी दुआ कभी नहीं टालता। हिंदू लोग फिर मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि अभी पता चल जाएगा, जरा उस बच्चे को तो वापस लाकर दिखाओ, फिर तुम्हारी बात भी मानेंगे। उस बुजुर्ग अल्लाह वाले को लोगों ने बताया कि वो चीता बच्चे को इस तरफ लेकर गया है। अल्लाह वाला भी उस तरफ चल पड़ा और पीछे मीरा और बाकी हिंदू लोग भी चल पड़े। अल्लाह वाला जब जंगल के करीब आ गया तो वहाँ पर एक गार थी जो बहुत ही बड़ी थी। सब लोगों को शक होने लगा कि वो खतरनाक चीता शायद इसी गार में ही गया है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गार के पास भी जा सके। सब लोग डर रहे थे। अल्लाह वाले उस गार के करीब होकर बैठ गए और इबादत करनी शुरू कर दी। अल्लाह वाले अपनी जुबान में कुछ दुआ कर रहे थे। अल्लाह वाले ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए हुए थे और वो तमाम लोग अल्लाह वाले की तरफ देख रहे थे। अल्लाह वाले काफी देर वहां दुआ करते रहे और अचानक ही उस गार के अंदर से चीते की दहाड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। वो चीता खतरनाक खौफनाक तरीके से दहाड़ रहा था। जब सब लोगों ने चीते की आवाज सुनी तो सब लोगों को यकीन हो गया कि चीता इसी गार में है। अल्लाह वाले ने जब अपनी इबादत मुकम्मल कर ली, अल्लाह वाले ने जब अपनी दुआ मुकम्मल कर ली तो अल्लाह वाले वहां से उठ खड़े हुए और उस गार के अंदर चले गए। अल्लाह वाले जब उस गार के अंदर गए तो उस गार में चीता मौजूद था और पास में ही वो बच्चा लेटा हुआ था। और हैरत की बात तो ये थी कि चीते ने उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अल्लाह वाले ने चीते के सर के ऊपर हाथ रखा और कुछ पढ़कर चीते के ऊपर दम किया। दम होते साथ ही वो चीता ठंडा और सुकून में आ गया। अल्लाह वाले ने उस बच्चे को उठाया और साथ में उस चीते को भी लेकर गार से बाहर आ गया। जब उन हिंदू लोगों ने उस बच्चे को खैरियत से अल्लाह वाले के पास देखा और उस चीते को अल्लाह वाले के साथ देखा तो वो हिंदू लोग हैरान हो गए। अल्लाह पाक की कुदरत का वो खूबसूरत मंजर देखकर वो हिंदू लोग हैरान रह गए। वो चीता जो सबके सामने दहाड़ता हुआ उस 2 माह के बच्चे को उठाकर ले गया था, वो चीता किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। मीरा दौड़ती हुई अपने बच्चे की तरफ आई और उसने अपने बच्चे को उठा लिया। बच्चे को पाकर माँ ने सुकून पाया। उस हिंदू औरत का यकीन पक्का हो गया। उस हिंदू औरत ने अल्लाह वाले की तरफ देखा तो वो समझ गई कि ये अल्लाह ताला की कुदरत थी। ये अल्लाह वाले की दुआओं का नतीजा है कि मेरा बच्चा मुझे खैरियत से मिल गया है। वो कहने लगी कि ए अल्लाह वाले, अगर आज आप ना आते तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे बच्चे को वापस लाकर देते। मैं तो यही समझती थी कि मेरा बच्चे को ये चीता खा जाएगा। उसका शौहर भी अल्लाह वाले के पास आकर उसका शुक्रिया करने लगा और वो तमाम हिंदू लोग जो अल्लाह वाले का मजाक उड़ाते थे, जब अल्लाह वाला उनके गांव में आता था तो वो अल्लाह वाले को धुतकार कर निकाल देते थे। अब वो हिंदू लोग शर्मिंदा भी हो रहे थे। अब वो खामोश होकर सब सुन रहे थे। मीरा का शौहर कहने लगा कि ए अल्लाह वाले, हमें बताइए कि आपने इस चीते से कैसे जंग लड़ ली। अल्लाह वाले कहने लगे कि हमें इस चीते से जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह ताला ने इस चीते के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दी। अब उन हिंदू लोगों के दिलों में भी सवाल उठ रहे थे कि किस तरह एक खूनी चीता बदल गया और किस तरह ये सब मुमकिन हो गया। उन हिंदू लोगों ने भी अल्लाह वाले से कहा कि आप कौन हैं और आपकी दुआओं में इतना असर कैसे है, हमें भी बताइए कि वो कौन सी कुव्वत है जो आपको इतनी ताकत देती है।
उस वक्त वो बुजुर्ग अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। अल्लाह वाले मुस्कुरा के उनके सवालों के जवाब देने लगे। अल्लाह वाले के चेहरे पे एक चमक सी थी। वो लोग अल्लाह वाले के चेहरे पे वो चमक देख रहे थे। उन्होंने अपनी मिसाली तहजीब और मिठास से जवाब दिया। अल्लाह वाले कहने लगे कि ये मेरे रब की कुदरत है। वो अल्लाह जो हर जिस्म हर रूह का मालिक है, जो हर चीज पे पूरी ताकत रखता है, उसका नाम अल्लाह है। और वो अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जानता है। जब हम अपनी रूह को रब के हवाले कर देते हैं, जब हम अपने दिल को खोलकर उस पर ईमान लाते हैं, तो फिर वो हमें अपनी कुदरत दिखाता है और फिर वो रब अपनी रहमत हर चीज में शामिल कर देता है। वो तमाम हिंदू लोग अल्लाह वाले के पास बैठ के दिल से ये सारी बातें सुनते रहे, जैसे उनके दिल पिघल रहे हों। एक पुजारी हल्की सी आवाज में कहने लगा, लेकिन हम तो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्या हमारे ये तरीके गलत हैं? आखिर अल्लाह कौन है जो आप कहते हैं कि सब कुछ ही अल्लाह ताला के इख्तियार में है? अल्लाह वाले उस शख्स की बात सुन के मुस्कुराए और बहुत ही मिठास के साथ जवाब देने लगे। अल्लाह वाले ने अपनी शहादत की उंगली ऊपर करके बताया कि अल्लाह सिर्फ एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो सबका खालिक और मालिक है। और अल्लाह पाक को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह पाक ने हम सबको बनाया है, इस दुनिया को बनाया है। इस दुनिया में जितने भी मखलूक है, इंसान है, जानवर है, परिंदे हैं, सब कुछ अल्लाह पाक ने बनाया है। और अल्लाह ताला सच्चे लोगों के दिलों में होता है, उनकी रूह में होता है और उनकी मदद करता है। और वही वो रब है जो असल में हर चीज का बादशाह है। सभी लोग अल्लाह वाले की बातें ध्यान से सुन रहे थे। अल्लाह वाले की बातें सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनके दिल के अंदर एक ताकत थी, एक रूहानी ताकत थी जो लोगों को उनकी तरफ खींच रही थी। अल्लाह वाले ने बताया कि हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा और उनके जरिए हमें बताया। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इंसानियत की असल राह दिखाई। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें पैगाम दिया है। इंसान अगर अपनी रूह और अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर देता है, फिर इंसान से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हम सब सिर्फ इस दुनिया में मेहमान हैं और असली जिंदगी आखिरत में है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद उस सच को तलाश करना है जो सच तुम्हें अल्लाह पाक तक लेकर जाता है, और तुम सबका दिल सच को तलाश कर रहा है। अगर तुम सब दिल से अल्लाह ताला के सामने झुको तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत के जरिए नवाज देगा। अब उस गांव में एक नया रोशनी का सफर शुरू हो गया जो अल्लाह के पैगाम और अल्लाह की कुदरत के जरिए आया था। अब उस गांव में कोई हिंदू नहीं रहा था, सभी लोग मुसलमान हो चुके थे और वो हिंदू औरत मीरा भी मुसलमान हो चुकी थी। उसने अपना नाम फातिमा रखा। अल्लाह वाले के साथ जो चीता था, वो चीता अब हमेशा के लिए अल्लाह वाले का गुलाम बन चुका था। सब लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते और अल्लाह वाले की गुफ्तगू सुनते। अल्लाह वाले उनको दुनिया और आखिरत की बातें सिखाते। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी सब बताते। अब सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, कोई किसी को बुरा भला नहीं कहता था। नाजरीन, इस सबक आमोज कहानी से बहुत से जिंदगी के अहम राज और तालीमात का पता चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ताला हर चीज पे पूरी ताकत रखता है। जब हम अल्लाह ताला पे अपना ईमान मजबूत कर लेते हैं तो अल्लाह ताला हमें हर मुश्किल से निकाल देता है। और दुआओं के जरिए ये बात साबित होती है कि जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म के सिवा पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह का पैगाम सबके लिए है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है या जो भी है। और अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का रास्ता उन सब लोगों के लिए है जो दिल से अल्लाह पाक को तलाश करते हैं, जो दिल से अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। नाज़रीन, लोग नाच गाना तो बहुत शेयर कर देते हैं, इस तरह की सबक आमोज कहानियां कोई नहीं आगे शेयर करता। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें।
क्या पता आपके वीडियो शेयर करने से किसी के दिल पे ये बात उतर जाए और सदकाए जारिया बन जाए। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।